الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے پہلے سے لے کر آخر تک محبت کے ساتھ. میرے لیے نہیں، حنیف صاحب کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، علی اکبر صاحب کے لیے نہیں، بغدادی صاحب کے لیے نہیں، صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے لیے پیار کے ساتھ درود کی گونج ہو جائے، محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعر بڑا خوبصورت ہے، ضائع نہیں ہونے دینا، بڑے کمال کا شعر ہے. میلاد منائیں گے ہم ملک بچائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں انقلاب لائیں گے. بھول نہ جانا دیوانوں غازی کی شہادت کو، بھول نہ جانا دیوانوں غازی کی شہادت کو. اے غازی ہم وعدہ کرتے ہیں ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے. جب کوئی ظالم بھونکے گا اسے مار گرائیں گے. میلاد منائیں گے ہم ملک بچائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں انقلاب لائیں گے. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام عزت کے لائق منصب کے لائق آئے ہوئے مہمان بہت ہی پیارا گفتگو فرما رہے تھے، بہت ہی پیاری گفتگو تھی. ان کی لب و لہجہ کسی اور کی ترانے نہیں گا رہا تھا بلکہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی گا رہا تھا. سب آتے رہے، اپنی حاضری لگواتے رہے اور نغمے حضور کے گاتے رہے. اے عادل ٹاؤن کی سرزمین پہ بیٹھ کر حنیف صاحب کے گھر میں آ کر میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرنے والوں، زندگی میں نعرے لگاتے آئے ہو. کبھی کس کا نعرہ، کبھی کس پارٹی کا نعرہ، کبھی کس پارٹی کا نعرہ. خدا کی قسم جو نعرہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا ہے وہ کسی اور نعرے میں محبت نہیں ہے. یا رسول اللہ، یہ نعرہ بڑے کمال کا نعرہ ہے. جس نے اس نعرے سے پیار کیا رب نے اسے عظمت عطا فرمائی ہے. جس نے اس نعرے سے پیار کیا ہے، اس نعرے سے پیار کرنے کا مطلب آمنہ کے لال سے پیار کیا، رب نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی رب تعالیٰ نے بلندیاں عطا فرمائی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ چمکتے ہوئے چہرے بلال رضوی صاحب اور شام بغدادی صاحب، طیب بغدادی صاحب اور حافظ علی اکبر رضوی صاحب، قاری عدنان صاحب اور حنیف صاحب نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. ان سب کی حاضریاں لگی، انہوں نے اپنی حاضری یہ لگائی کہ انہوں نے محفل سجائی ہے. اور میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا ابتدائی مراحل میں، اے نوجوانوں، اے طالب علموں، اے حنیف صاحب، آپ آج سارا دن زندگی میں کبھی آپ ٹرک کے ڈرائیور ہیں، آپ ڈرائیونگ کرتے رہے، کبھی کس کا فون سنتے رہے، کبھی کس کا فون سنتے رہے. جملہ بڑا قیمتی ہے، ضائع نہ ہونے دینا. کبھی کس کا فون سنا، کبھی کس کا فون سنا، کبھی کس کی کال پہ لبیک کہا، کبھی کس کی کال پہ لبیک کہا. اے طالب علموں، تم نے ساری زندگی گھر کے کام کیے ہیں، دوستوں کے کام کیے، یاروں کے کام کیے اور مزہ ان کاموں میں نہیں تھا. آج صبح سے لے کر بچے شام تک کوئی راڈ لگا رہا ہے. آج سب مصروف ہے کس چیز میں؟ آمنہ کے لال کے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں مصروف ہے، محفل کرانے میں مصروف ہے. اے حنیف بھائی، آج آپ کا موبائل کہاں اٹھتا ہے؟ آج کس کو کال کرتے ہیں؟ آج کبھی ٹینٹ سروس والے کو کال کی جاتی ہے جلدی آنا، ہمارے گھر میں میلاد ہے، ہم نے میلاد کی محفل سجائی ہے. کبھی ساؤنڈ والوں کو کال کی جاتی ہے، کبھی جو ہے دیگ والوں کو کال کی جاتی ہے جلدی آنا، حضور کے غلاموں کو لنگر پکا کر کھلانا ہے. ان سے پوچھے زندگی میں کالیں آتی رہی، سنتے رہے. خدا کی قسم آج ان کا ایک منٹ، ایک وقت، ایک کال ان طالب علموں کا یہ کام کرنا
करना, ये महफिल सजाना, ये स्टेज सजाना, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल ही कबूल है। इनका एक एक मिनट मोहब्बत रसूल में गुजरा है, मोहब्बत रसूल में गुजरा है। और मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है उसमें रब कायनात इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम अगर तुम तो हिब्बुल्लाह मोहब्बत करते हो अल्लाह से, फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तबा करो। ए मालिक मौला इत्तबा करेंगे मिलेगा क्या? रब फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। और ये मोहब्बत की बातें हैं। ये रब की बारगाह में दरखास्त करते हैं, मालिक हम तुझसे प्यार करेंगे, तू हमें दुनिया की नेमतें अता फरमाएगा और सख्त अजाब से हमें निजात दिलाएगा। ए मालिक ये तो बता फत्तबिऊनी की शर्त क्यों रखी? अगर हम फत्तबिऊनी पर अमल करें तू अता क्या फरमाएगा? रब कायनात इरशाद फरमाता है, मेरे प्यारे बंदे ते सोने बंदे, तू अगर फत्तबिऊनी पर अमल करेगा ये रब तुझसे मोहब्बत करेगा, ये रब तुझसे प्यार करेगा। और जिससे रब राजी हो जाए, जिससे रब राजी हो जाए फिर वो सैयदना सिद्दीक अकबर बनती है। जिससे रब राजी हो जाता है फिर वो हजरत उमर फारूक बनते हैं। जिससे रब राजी होता है फिर वो अवैस करनी बनते हैं। जिससे रब राजी हो जाता है फिर वो हजरत उस्मान गनी बनते हैं। अगर करीब की बात करूं तो जिससे रब राजी हो जाता है फिर वो मलक मुमताज हुसैन कादरी बनता है। ये मोहब्बत की बातें हैं। अब सबसे पहले देखिए, जिससे रब राजी हो जाए तो वो अवैस करनी बनती है, वो हजरत अबू हुरैरा बनती है। हजरत अबू हुरैरा से बहुत सी हदीसें मरवी है, उन्होंने बहुत ज्यादा हदीसें रवायत की है। और मैं इकराम यहाँ तशरीफ फरमाए, हजरत अबू हुरैरा हुजूर से बड़ा प्यार करते थे। एक दिन अबू हुरैरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो आंखों में आंसू थे, जारो कतार रो रहे थे। इसकी को थोड़ी और कटाए, मुझे लगता है समझ नहीं आ रहा। और आंखों में और आंसू है, जारो कतार रो रहे हैं। तेरे और मेरे नबी ने अपने गुलाम को देखा तो सीने से लगाया, कहा बेटा क्यों रोते हो? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ ने मार के घर से निकाल दिया है, माँ ने मार के घर से निकाल दिया। तेरे और मेरे नबी पता है क्या फरमाते हैं? दिल थाम के सुनिएगा। तेरे और मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा हम तुम्हें कबूल करते हैं, हम तुम्हें कबूल करते हैं। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने से लगाया, सीने से सीना मस है। वो कैसे लम्हात होंगे जब हुजूर ने अपने आशिक को अबू हुरैरा को सीने से लगाया होगा, सीने से लगाया। कहा अबू हुरैरा से हुजूर फरमाते हैं हम तुम्हें कबूल करते हैं। अब अबू हुरैरा और रोना शुरू कर देते हैं। तेरे और मेरे नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा क्यों रोते हो? हमने तुम्हें कबूल किया है। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मेरे बगैर रह नहीं सकती। या रसूलल्लाह मेरी माँ मेरे बगैर रह नहीं सकती, खाना नहीं खाती। हुजूर फरमाते हैं, ऐ अबू हुरैरा क्या चाहते हो? देखिए अकीदा देखिएगा, ऐ अबू हुरैरा क्या चाहते हो? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे ना, मेरी माँ भी ईमान ले आए, मेरी माँ भी मान लिया। तेरे और मेरे नबी ने अब बात सुनने वाली है, हाथ उठाए, हाथ उठाए जरा जाग कर। तेरे और मेरे नबी ने अभी हाथ उठाए थे, अबू हुरैरा ने मदीने की गलियों में भागना शुरू कर दिया, दौड़ लगा दी। किसी ने अबू हुरैरा को देखा, कहा अबू हुरैरा कभी इतना तेज मदीने की गलियों में चलते नहीं देखा, आज दौड़ लगा रहे हो, वजह क्या है? अबू हुरैरा रो कर कहते हैं, आज मैं दौड़ वैसे नहीं लगा रहा, आज मेरे पाँव में जूती नहीं है, वैसे नहीं है, आज हुजूर ने मेरी माँ के लिए दुआ कर दी है। अब अबू हुरैरा घर जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं और आंखों में आंसू है, आज हुजूर ने मेरी माँ के लिए दुआ की है, मेरी माँ ईमान लाएगी। जब दरवाजे पे दस्तक दी, दिल की धड़कन तेज होने लगी। जब दरवाजे पे दस्तक अबू हुरैरा देते हैं, जब अबू हुरैरा ने दरवाजे पे दस्तक दी, अबू हुरैरा की वालिदा जब दरवाजा खोलती है, जुबान पर कलमा तैयबा जारी था, कलमा तैयबा जारी था। ये मोहब्बत है, ये इश्क है। एक दिन अबू हुरैरा का एक और वाकया सुने। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे और टिक बांधकर हुजूर को देख रहे, बस नजर रखी है और हुजूर को देख रहे। हुजूर ने अबू हुरैरा को देखा, फरमाया ऐ अबू हुरैरा रोज ना आया करो, एक दिन छोड़ के आया करो, एक दिन छोड़ के आया करो। आशिक के लिए बहुत बड़ी बात होती है, हाँ जी आशिक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। नौजवान बैठे हो, तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई हो, कोई कहे नहीं एक दिन नहीं, छोड़ के एक हफ्ते बाद मिला गे तो दिल की कितनी
धड़कन तेज होती है, यार का दीदार नहीं होगा। लेकिन अबू हुरैरा पे कुर्बान जाए ना। जब हुजूर ने फरमाया ए अबू हुरैरा एक दिन छोड़ के आया करो, अबू हुरैरा मस्जिद नबी से बाहर निकल गए और मस्जिद नबी का सतून पकड़ लिया, चीखे मार मार के रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों में आंसू है। ये तेरे और मेरे नबी अबू हुरैरा को बाहर आते हैं, अबू हुरैरा को देखा, सीने से लगाया, कहा अबू हुरैरा क्यों रोते हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी याद सताती है, मैं मदीने की गलियों में होता हूँ, आपकी याद सताती है, मैं भागा भागा आता हूँ, जब तक वो दुआ का चेहरा न देखूं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मैं घर में होता हूँ, आपकी याद सताती है, भागा भागा आता हूँ, जब तक वो दुआ का चेहरा न देखूं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मैं जो है किसी और जगह पे होता हूँ, जब आपकी याद सताती है मैं भागा भागा आता हूँ, जब तक वो दुआ का चेहरा न देखूं दिल को सुकून नहीं मिलता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक दिन की कैद लगाई है, मैं सोचता हूँ जिस दिन आपका दीदार नहीं होगा अबू हुरैरा का दिन कैसे गुजरेगा। अबू हुरैरा का दिन कैसे गुजरेगा। ये हुजूर से प्यार था सहाबा इकराम का, ये प्यार था, ये मोहब्बत थी, ये इश्क था। अवैस करनी का नाम तो सुना होगा। अवैस करनी साबी नहीं है, ये ताबी है। साबी किसे कहते हैं और ताबी किसे कहते हैं? साबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया हो, और ताबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में साहबी का दीदार किया हो। अवैस करनी हुजूर से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन हुजूर का दीदार न कर सके। हुजूर का दीदार किस वजह से न कर सके? क्योंकि माँ उनकी बूढ़ी थी, माँ की खिदमत किया करते थे, माँ की खिदमत किया करते थे। एक दिन अबू अवैस करनी ना अपनी माँ की दलीस पे, माँ की बारगाह में रो रो कर कहते हैं, अवैस करनी हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो कर कहते हैं, ऐ अम्मी जी मुझे इजाजत दे ना, मैं हुजूर का दीदार करना चाहता हूँ। माँ इजाजत दे दी, वास्ते डालने लगे, रोने लगे। माँ कहती है अवैस करनी मैं बूढ़ी हूँ, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मैं तो फालिज ज़दा हूँ, मेरी देखभाल कौन करेगा। कहा माँ मैं सिर्फ दलीस पे जाऊंगा, सिर्फ चेहरा देखूंगा, वापस आ जाऊंगा। अब माँ कहती है अच्छा बेटा मेरे सराने चीजें रख जा, लेकिन चला जा, लेकिन जाना उनकी दलीस पे है, फिर वापस वहां से जाना है। अवैस करनी ने माँ के सराने खाने पीने की चीजें रखी, और जो है शौक मोहब्बत में हुजूर की मोहब्बत में निकलते हैं। इधर एक अकीदे की बात है, सिर्फ समझाऊंगा, ज्यादा तशरीह नहीं करनी। इधर से अवैस करनी निकलते हैं हुजूर के दीदार के लिए, उधर से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गज़वे में जाना था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं मेरे बाद अवैस आएगा। इधर से अवैस करनी निकले थे, अकीदे की बात निकले थे, लेकिन हुजूर वहां क्या फरमाते हैं अम्मा आयशा सिद्दीका से, फरमाते हैं जो मोमिनों की माँ है, फरमाती है आयशा मेरे बाद अवैस आएगा। अगले जुमले बड़ी मीठे हैं, बड़ी मिठास है, अगर दिल के कानों से सुनो तो फिर मिठास है। अगर ये हो कि लंगर कब मिलेगा जाके सोना भी है, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा। चस लेनी है तो हुजूर की मोहब्बत की चस लो, खुदा की कसम दिल रोशन ना हुआ तो आके मुझे पकड़ लेना, दिल के अंदर चाशनी ना आई, मिठास ना आई तो फिर बात करना। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाती है आयशा मेरे बाद अवैस आएगा, उसको रुकने का कहोगे वो रुकेगा नहीं, उसको रुकने का कहोगे वो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बीमार है, वो माँ की खिदमत करता है, उसको मेरा सलाम कहना, उसको मेरा सलाम कहना। अब हुजूर किसी गज़वे में निकल गए, इधर से अवैस करनी शौक की मोहब्बत, आंखों में आंसू है, और आंखों में आंसू है, ज़ारो कतार रोते हैं, रोकर कहते हैं आज वक्त दुआ का चेहरा देखूंगा, आज हुजूर का दीदार करूंगा, आज हुजूर से जो है दीदार करूंगा, अपने दिल की प्यास बुझाऊंगा। सदियां गुजर गई, हुजूर का दीदार न कर सका, लेकिन आज माँ ने इजाजत दी है, आज हुजूर का दीदार होगा, दिल को सुकून मिल जाएगा, दिल को ठंडक पहुंच जाएगी, पता चल जाएगा मेरा नबी बड़ा ही सोना है और मैं कसीदे अपने नबी के गाऊंगा। अब अवैस करनी जाते हैं, जब दर मुस्तफा पे पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका पूछती है कौन? फरमाया मैं अवैस हूँ, करन से आया हूँ, हुजूर से मिलना चाहता हूँ। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सरताज ने तुम्हें सलाम फरमाया है। और अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह के नबी ने किसी गज़वे में जाना था, वो चले गए, तो जब कहा ना अल्लाह के नबी ने तुम्हें सलाम कहा है,
تو अवैस करनी की आंखों में आंसू है, चीख निकल के रो कर कहा, ऐ आयशा ये तो बताओ जब हुजूर ने मेरा नाम लिया था लबों पे नाम कैसे आया था, मुझे ये तो बताओ ना लबों पे नाम कैसे आया था। अवैस करनी दर मुस्तफा पे पहुंचते हैं और वहां से खाली लौट आते हैं, हुजूर का दीदार नहीं होता। हुजूर की मोहब्बत इस कदर सीने के अंदर पुख्ता थी, और जो हुजूर का गुलाम हुजूर की मोहब्बत में तड़पता है ना, जो हुजूर की मोहब्बत में रोता है, हुजूर की मोहब्बत में तन्हाइयों में बैठ बैठ कर बबेले मचाता है, जंगलों में जाकर रो रो कर कहता है वो वक्त कब आएगा मेरे अपने नबी का दीदार करूंगा। उसके लिए तो उसके साथ तेरे और मेरे नबी भी बड़ा प्यार करते हैं। अब अवैस करनी से ना हुजूर भी बड़ा प्यार करते थे। अवैस करनी वापस लौट आए, हुजूर का दीदार ना हो सका। अब अवैस करनी वापस आते, एक दिन तेरी और मेरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने के बटन खोल देते हैं, सीने के बटन खोल के लंबी लंबी सांसें लेते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं और फरमाते हैं मुझे करन से रहमान की खुशबू आती है। अल्लामा साहब, रहमान की खुशबू आती है। सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूलल्लाह रहमान की खुशबू करन से? कहा हाँ रहमान की खुशबू आती है। कहा रहमान की खुशबू कैसे आती है? फरमाया करन के अंदर मेरा एक गुलाम है जो अल्लाह और उसके रसूल से बड़ा प्यार करता है। हाँ मेरे भाई तू मोहब्बत तो कर ना अल्लाह और उसके रसूल से। तेरे तज़किरे वो तो मदीने में तज़किरे थे ना, वो तो मदीने में तज़किरे थे ना। अगर तू यहाँ बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेगा, तेरा जिक्र पता है कहाँ होगा? अर्श पर तेरा जिक्र होगा। ये अजमत सिर्फ हुजूर की उम्मत को मिली है, हुजूर के गुलामों को मिली है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने के बटन खोलकर क्या फरमाते हैं? मुझे रहमान की खुशबू आती है। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह रहमान की खुशबू कैसे? फरमाया वहां मेरा एक गुलाम है जो अल्लाह और उसके रसूल से बड़ा प्यार करता है। फिर अगली बात सुनो, एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है, अपनी उम्मत के लिए रो रहे थे। ऐ नौजवान, ऐ बूढ़े, ऐ बड़े, ऐ बच्चे, अगर मैं इस बात पे आऊं ना तो काफी घंटे लग सकते हैं। हुजूर ने अपनी उम्मत के प्यार में कितने आंसू बहाए हैं। जिंदगी तूने भी गुजारी है, तूने भी गुजारी है, कभी चौकों में, कभी हुजरों में, कभी टीवी के आगे, कभी विसिआर के आगे, कभी कंप्यूटर के आगे, कभी 10-10 घंटे मोबाइल के आगे बैठकर, और कभी कभी ऐसा भी हुआ रात पूरी तेरी मोबाइल के अंदर गुजर गई है। लेकिन अपने ज़मीर से पूछना हुजूर की मोहब्बत में कितनी देर बैठा है, कितनी हुजूर की मोहब्बत में। हमें तो मजा इस चीज में था, हमें कहते मौलाना साहब ऐसे नहीं हो सकता, पूरी रात ही हुजूर का मिलाद किया जाए। मैं तो सुभान अल्लाह तुम सदके जावा ना, हाँ जी तो सुभान अल्लाह तुम सदके जावा। हुजूर ने पूरी रात तुसा वेले पै गए मौलाना साहब। हाँ जी मैं पूरी रात भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर कर सकता हूँ, सदके जावा। तो आशिक साहब ठीक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब ये माशाअल्लाह जाफर साहब भी बैठे हैं जी, क्या बात है, ये बुजुर्गों से ही रौनक है ना जी। ये देखिए इमदाद अतारी साहब भी बैठे हैं जी। अब आपको बुजुर्गों के मुतालिक एक हदीस सुनाता चला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, रवायत के अंदर आता है जिसकी दाढ़ी में एक सफेद बाल आ जाता है ना, एक बाल, इनकी तो दाढ़ी सफेद है ना, इनकी दाढ़ी सफेद है। कहते हैं जिसकी दाढ़ी में एक सफेद बाल आता है अल्लाह को उससे हया आती है। किस चीज की हया आती है? फरमाया अल्लाह को हया आती है बरोज़ क़यामत मैं इनको जहन्नम में डालूं। कहा अल्लाह को हया आती है, अल्लाह हया करता है इनसे। और ये आगे चले, अल्लाह ताला करम फरमाए। फिर आगे सख्त बात थी, वो नहीं करते, दिल जो ही ना हो जाएंगी। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमाए, जितने भी बुजुर्ग हैं। देखे ना जी कुछ लोग ड्यूटियां करके भी यहाँ बैठे हैं। अब मेरा तो दिल करता है एक एक का माथा चूमू, हाथ भी चूमू। क्यों? वजह इसलिए किसी और महफिल में नहीं आया, बल्कि आमना के लाद दर मुस्तफा पे आया। और मजे की बात अल्लामा साहब बता रहे थे, बगदादी साहब, जहाँ हुजूर का जिक्र होता है ना, हुजूर वहां खुद तशरीफ फरमा होते हैं। बात क्या हो रही थी? अवैस करने की बात थी। अवैस करनी, एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू है, हुजूर अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, हुजूर की आंखों में आंसू है। हुजूर फरमाते हैं साहबा मुझे अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है, मुझे अपनी उम्मत से बड़ा इश्क है, मैं अपनी उम्मत की गम में आंसू बहा रहा हूँ।
फिर हजूर ने अपना जुब्बा उतार कर जो है हजरत उमर फारूक और हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दिया। कहा जाकर अवैस को दो और अवैस को कहो मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। कुर्बान जाए अवैस करनी तेरी अजमत पे। अवैस करनी तूने कैसा इश्क किया, हमें भी बताना, हम भी वैसा इश्क करें। अवैस करनी तेरी इश्क को हम सलाम करते हैं। अवैस करनी तूने इश्क के पीछे अपनी माँ को भी राजी रखा और मोहम्मद मुस्तफा को भी राजी रखा और अल्लाह को भी राजी रखा। ऐसा इश्क अल्लाह हमें भी अता फरमाए ना। अवैस करनी ताबी है, सहाबी नहीं है, लेकिन मकाम कौन सा पाया? मकाम वो पाया जो अल्लाह और उसके रसूल को बड़ा पसंद है। अल्लाह उस अब अवैस करनी ताबी है। हजूर जुब्बा किसको दे रही है? अवैस करनी को दे रहे ताबी को। और जुब्बा दिया किसको? हजरत उमर फारूक और हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। कितने जलीलुल कदर सहाबी है, लेकिन ये नहीं कहा ए अली तुम जो ले जाओ जुब्बा, मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करो, क्योंकि ये साहबी है। साहबी का मकाम तो ज्यादा है, ताबी का मकाम कम है। लेकिन साहबी को नहीं कहा, अली को नहीं कहा, अली की शान वो है, अली की शान बहुत ज्यादा है। लेकिन अली को भी नहीं कहा। अली का बचपना है, जब इस दुनिया में आए ना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला वो इस दुनिया में आते हैं, आंख नहीं खोलते थे, आंख नहीं खुलती थी, खोलते ही नहीं थे। जब तेरे और मेरे नबी सामने आए बद्दुहा का चेहरा देखा तो आंख खोल ली, आंख खोली। हजूर का चेहरा बचपन में आंख खोली तो बद्दुहा का चेहरा देखकर आंख खोली है वो अली अल मुर्तजा। लेकिन अली को नहीं कहा अली मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर। लेकिन ये जुब्बा हजरत उमर फारूक और हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को दिया। कहा जाकर अवैस को दो और कहो मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। अमीर उल मोमिनीन हजरत उमर फारूक और सैयदना अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जाते हैं। जाकर अवैस लोगों से पूछते हैं, अवैस को जानते हो? करण पर पहले पूछते हैं करण किधर है, करण पहुंचते हैं, फिर पूछते हैं अवैस को जानते हो? लोग कहते हैं वो तो मजनू है, उसको लोग पत्थर मारते हैं वो हंसता है, लोग उसको हंसाते हैं वो रोता है, उसकी अजीब सी कैफियत है, वो हर टाइम रोता रहता है। उसके पास जो बैठता है वो भी रोना शुरू कर देता है, उसके रोने भी बड़ा दर्द है। वो तो हर टाइम जो है मजनू की तरह रहता है, वो ऐसे ही जंगलों में घूमता रहता है और वो किसी का नाम लेता रहता है और सिर्फ आसमानों से कभी बातें करता है, कभी मदीने की तरफ रोक कर मदीने से कोई बात किसी से बात करता है। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं ये मदीने से किसी और से बातें नहीं करता है लोगों, ये मोहम्मद मुस्तफा से बातें करता है, ये मोहम्मद मुस्तफा से बातें करता है। अब हजरत अली अल मुर्तजा और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा क्या देखते हैं? अवैस करनी है, आंखों में आंसू है, रो रहे हैं और अपने प्यारे नबी का नाम लेते हैं। या अल्लाह वो कब लम्हात आए कि मैं अपने नबी का दीदार करूंगा। अवैस करनी को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सलाम अर्ज किया और सलाम अर्ज करने के सलाम कहने के बाद कहने लगे कि या अल्लाह के नबी ने तुम्हें सलाम कहा है। जब सुना ना तो चीख मारी, जमीन पे गिर गए, रोकर कहा ए उमर ये तो बताओ ना जब अल्लाह के नबी ने मेरा नाम लिया था तो जुबान पे नाम कैसे आया था? अवैस करनी रो कर फिर कहते हैं कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ने जुब्बा दिया है, कहा है मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करे। अवैस करनी वो जुब्बा लेती है, जंगल की तरफ निकल जाती है, काफी टाइम लग जाता है। दिल थाम के सुनिएगा, हुजूर से मोहब्बत करके देख, हुजूर से प्यार करके देख, फिर देख अर्श का रहमान भी तुझसे किस कदर मोहब्बत करता है। अवैस करनी जंगल में जुब्बा लेकर जाती है। जब जुब्बा लेकर जंगल में गई, काफी टाइम लग गया। अमीर उल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शायद लगता है कि कहीं रूह परवाज कर गई है, सजदा लंबा हो जाता है, कहीं रूह परवाज कर गई। जब के ना अवैस करनी के करीब जब हाथ लगाया, अवैस करनी ने सर उठाकर कहा ए उमर कुछ देर और रुक जाता, मैं हुजूर की सारी उम्मत को बख्शवा देता, मैं हुजूर की सारी उम्मत को बख्शवा देता। मेरे भाई ये मोहब्बत है, ये प्यार है। तू कौन सी मोहब्बत को ढूंढ रहा है, किस मोहब्बत के पीछे पड़ा है? खुदा की कसम चाहता है तेरे घर में भी रौनकें लगे, चाहता है तेरी अजमत के डंके दुनिया में नहीं बल्कि अर्श पर तेरे अजमत के डंके बचे। तो फिर हुजूर से मोहब्बत कर, हुजूर से प्यार कर, हुजूर से प्यार कर। मौलाना जामी अल रहमा ना, मौलाना जामी अल रहमा बहुत बड़े जवाइन का नाम है, बहुत बड़ा नाम है। ये मदीने शरीफ हुजूर की नात लिखी, आखिरी बात है, नात लिखी और नात लिखी तो दिल में ख्याल आया रोज़ा रसूल पे जाकर हुजूर के पास जाकर ये नात पढ़ूंगा।
नात पढ़ूंगा। देखिए दीवाने कैसे होते थे, मस्ताने कैसे होते थे, इश्क में कैसे डूब डूब कर नाते लिखते थे, कैसी नाते लिखते थे, कैसे कलाम लिखते थे। कहा जी कहाँ जाके पढ़ूंगा? जी मदीने शरीफ जाके पढ़ूंगा। ये मदीने का सफर करते हैं, मदीने का सफर करते हैं। उधर जो है दरबारियों की ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और फरमाते हैं दरबारियों से, मेरा एक आशिक, मेरा एक गुलाम अवैस कर नहीं आ रहा है, उसको मेरा एक गुलाम अवैस जो है मौलाना जामी आ रहा है, उसको आने ना देना, उसको मेरे रोजे पे आने ना देना। जब काफिला आया मदीने की दहलीज पे पहुंचा तो पूछा गया कि तुम में से मौलाना जामी कौन है? जो है मौलाना जामी आंखों में आंसू है, हाथ खड़ा करते हैं, कहते हैं मैं हूं। कहा तुम नहीं जा सकते, ये सारा काफिला जा सकता है। मौलाना जामी की चीखें निकल गई। कहा इतने दूर से सफर करके इसीलिए आया था आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा की दहलीज पे आकर नाते रसूल मकबूल पढ़ू, बड़ी जो है दिल नशीन निगाहों से लिखी है। कहा नहीं मौलाना जामी तुम नहीं जा सकते, ये काफिला जा सकता है। चीखें निकल गई। मेरे भाई जब बुलावा आए और अचानक रुकावट आ जाए तो दिल कितना उदास होता है, दिल कितना गमजदा होता है। दिल का अंग अंग कहता है पता नहीं कौन सी गलती होगी है जिसकी वजह से वहां हाजिरी नहीं लग रही, लेकिन दिल थाम के सुनिएगा हुजूर के आशिक कैसे होते हैं। मौलाना जामी ने फिर सोचा क्या किया जाए। इतने में बकरियों का रेवड़ जाता है। मौलाना जामी अपने ऊपर खाल ओढ़ लेते हैं, बकरी की खाल ओढ़ के उससे जो है बकरियों को रेवड़ में चलना शुरू कर देते हैं। जिस तरह बकरी चलती है उस तरह चलना शुरू करते हैं। फिर हुजूर दरबारियों की ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं मेरा गुलाम मौलाना जामी आ रहा है, वो बकरियों के रेवड़ में छुप के आ रहा है, उसको रोक लो। अब जो है दरबारी फिर पकड़ लेते हैं, वापिस कर देते हैं। कहा बार बार समझाते हैं, फिर आ जाते हो। वैस करनी जो है मौलाना जामी की आंखों में आंसू है, रोकर कहा जाने तो दो ना, क्यों नहीं जाने देते? कहा नहीं तुम्हें जाने नहीं दे सकते। वापिस कर दिया गया। फिर एक मदीने की तरफ काफिला आया तो काफिले वालों के कदमों में गिर गए, रोकर कहा ये नहीं हो सकता, मुझे अपने सामान के अंदर बांध लो, मुझे मदीने ले जाओ, मैं मदीने जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कैसी बातें करते हो, सामान के अंदर कैसे तुम्हें बांध ले? बड़ी इल्तिजा की, उनको तरस आया। उन्होंने कहा अच्छा चले मौलाना जामी को जो है सामान में बांध लेते हैं। अब रस्सियों से जगर दिया गया, अब सीने पे भी रस्सियां है, चेहरे पे भी रस्सियां है, रस्सियों से जगर दिया गया। अब जब जगर दिया गया अब छुप के सामान के अंदर छुप जाते हैं। जब वहां पहुंचने लगते हैं तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबारियों की ख्वाब में आते हैं, फरमाते हैं मौलाना जामी सामान के अंदर आ रहा है, उसको रोक लिया जाए। दरबारियों ने फिर जो है रोका और रोकर सामान चेक किया, मौलाना जामी को निकाला और कहा बार बार रोकते हैं, फिर आ जाता है, पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया, कैद कर लिया। जब कैद कर लिया ना, रात हुई तो जो है दरबारी सोते हैं। जब दरबारी सोए तो हुजूर ख्वाब में आए और कहा ऐ मेरे गुलाम, मेरा एक गुलाम है, उसको कैद क्यों किया है? कहा हुजूर आपका ही हुक्म था, हम बेचते थे, बार बार आ जाता था, इसलिए कैद कर लिया। हुजूर ने फरमाया ऐसी बात नहीं है, जिस इश्क के साथ, जिस मोहब्बत के साथ मौलाना जामी मेरी जो है कब्र अनवर पे आ रहा था, उस मोहब्बत के साथ मुझे बाहर निकल के मौलाना जामी का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस वजह से मुझे बाहर आना पड़ता। मेरे भाई ये हुजूर की मोहब्बत है, ये हुजूर का प्यार है। और हुजूर की मोहब्बत वो मोहब्बत है जो बहनों का प्यार भी बताती है, जो माँ का प्यार भी बताती है। आज आए हो, अज़म करो अगर किसी की माँ नाराज है तो जाके माँ के कदमों में सर रखना है। अगर किसी की बहन नाराज है तो बहन का माथा चूमना है। अगर किसी की बेटी नाराज है तो बेटी को सीने से लगाना है। और मेरे भाइयों ये दर्द मैं किस किस को सुनाऊं? मैं अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं दर्द कैसे बयान करूं? मेरे भाई आज बहन भी रो रही है, आज भाई भी रो रहा है, आज घर मैदानी जंग बन चुका है। ऐ नौजवान, ऐ बाबे, ऐ बड़े, ऐ छोटे, तुझे क्या हो गया? तूने तो इश्क मुस्तफा की गुड्डी पी है, तू कैसे भूल सकता है? ये इहसानात हुजूर के, ये अगर बाप की इज्जत है तो ये हुजूर की वजह से है। बहन को मकाम मिला हुजूर के सदके, बेटी को मकाम मिला हुजूर के सदके। तो जब सारी चीजें हुजूर के सदके मिली है तो फिर हुजूर की जो है हुजूर की बातों को भी मानना चाहिए। मेरे भाई वक्त मुख्तसर है। एक मैंने तहरीर पढ़ी है, एक तहरीर एक किताब के अंदर थी, अब सुन लो क्या थी।
وہ لکھا تھا، ایک لڑکی تھی، وہ اپنی تحریر اپنے الفاظ میں لکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا باپ مر گیا، میرے بھائی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، میرے بھائی بھی مر جاتے ہیں، اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے صرف، تو ان کی پرورش کرنی تھی، میری ماں بھی مر گئی، ایکسیڈنٹ حادثہ ہوا، بڑے بھائی بھی تھے، ماں بھی تھی، اور جو ہے بھائی بڑے بھی تھے اور ابو بھی تھے، سارے جو ہے ایکسیڈنٹ کے حادثے سے انتقال ہو جاتا ہے۔ کہا چھوٹے بھائی تھے، میں سوچنے لگی کیا کروں، میں دروازے پہ لوگوں کی دستک دیتی تو میری بات کو کوئی نہ سنتا اور مجھے دھکے دے دیے جاتے، میں روتی اور رو کر اپنا زیور تھا میرا، کچھ ماں کا زیور تھا وہ بھی بیچ دیا، لیکن وقت گزرتا رہا، پیسے لگتے رہے، پھر میں مجبور ہوگی، کیا کیا جائے؟ کہا پھر میری مجبوری اتنی بھر گئی کہ میں نے بچوں کی پرورش، بھائیوں کی پرورش کرنی تھی، میں روتی تھی اور سجدے کرتی تھی، یا مالک کیا کروں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو محلے میں ہماری خدمت کرے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہمیں ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ کہ اگر کوئی خدمت کرتا بھی تھا تو وہ کیمرے لے کے آ جاتا تھا اور وہ موویاں لے کے آ جاتا تھا، وہ پہلے کہتا تھا کیمرے فٹ ہو گئے پھر تیری امداد ہوگی۔ میں عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جب میری ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، تو چچا بھی دور ہو گیا، ماموں بھی دور ہو گئے اور سکی خالہ بھی مجھ سے دور ہونے لگی، کہا سارے رشتے دور بھاگنے لگے، کیونکہ میں منگتی بن گئی تھی، میں مانگنے والی بن گئی تھی، کیونکہ میں نے بھائیوں کا پیٹ چھپانا تھا۔ کہا پھر مجبوری نے اتنی انتہا کی کہ مجھے ایک اخبار میں پڑھا کہ ڈیوو کے اندر نوکری آئی ہے، میں مجبوراً کاغذ اٹھاتی ہوں، جا کر میں نے ڈیوو کے اندر اپلائی کیا، کہا میری نوکری لگ گئی۔ کہا جب نوکری لگی تو بھائی کا پیار تو ختم ہو چکا تھا، باپ کی ممتا تو ختم ہو گئی تھی، جو ہے ماں کی ممتا تو ختم ہو چکی تھی، کافی عرصہ بیت گیا تھا، نہ ماں کا پیار ملا، نہ باپ کا پیار ملا، نہ بھائی کا پیار ملا۔ کہا وہ رشتے ناطے دل کے اندر جو ہے بار بار چپتے تھے، اور جب میں ڈیوو کے اندر جاتی اور میں پیپسی لوگوں کو پلاتی، پانی پلاتی، تو میرے دل میں خیال آتا، کیا بتا جب نوجوان کے اندر آگے لے کر پیپسی جاتی تو میرے دل میں خیال آتا شاید یہاں سے بھائی کا پیار مل جائے، شاید یہاں سے بھائی کا پیار مل جائے۔ کہا بھائی کا پیار نہ ملتا، طنز ملتا، اور بڑی غیرت میری گوارا نہ کرتی، میں وہ الفاظ کیسے لکھوں؟ وہ رو کر کہتی ہے مسلمانوں میں الفاظ نہیں لکھ سکتی۔ کہا جب میں کسی بابے کے پاس جاتی میں کہتی مجھے یہاں سے بھائی کا پیار، باپ کا پیار ملے گا، کہا باپ کا پیار نہ ملتا، عجیب سی کیفیت ہوتی، اور جو نظر مجھے ملتی وہ تنہائیوں میں رو رو کر چھپ چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہتی ہے مالک یہ حضور کی امت ہے، یہ حضور کی امت ہے، مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ کہا پھر میں وہ اگلا دن آتا جب میں ڈیوو پہ آتی، روز سلگتی رہتی شاید آج بھائی کا پیار مل جائے، آج کسی کی نظر کے اندر بھائی کا پیار ہو، کسی کی نظر کے اندر باپ کا پیار مل جائے، کسی کے نظر کے اندر مجھے شفقت کا ہاتھ مل جائے۔ کہا میری زندگی بیت گئی، آج تک کسی کی نظر میں مجھے بھائی کا پیار نہ ملا، کسی کی نظر میں مجھے جو ہے بہن کا پیار نہ ملا، میری زندگی بیت گئی ہے، نظریں ڈھونڈ رہی ہے کوئی تو ہو نوجوان مجھے بہن کا پیار عطا کر دے۔ میرے بھائی یاد رکھ یہ بہنیں تیری بہنیں ہیں، ان بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھ، یاد رکھ جو حضور کے غلام ہوتی ہے نا، حضور کے غلام ان کی زندگی بڑی حسین ہوتی ہے۔ محمود غزنوی کا دور تھا، محمود غزنوی کا، اگر دل کے اندر غیرت ہوئی نا تو پھر آج کے بعد تیری گندی نظر کسی کی طرف اٹھے گی نہیں، جب بھی تیری نظر اٹھے گی نظریں جھک جائے گی، کیوں؟ تیرے اور میرے نبی نے جو ہے بہنوں سے پیار کیا ہے، ماؤں سے پیار کیا ہے، تیرے اور میرے نبی نے بہنوں کا پیار ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم کیسے غلط نظر سے اپنی بہن کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری نظر اس وقت ختم ہونا چاہنی چاہیے جب ہماری نظر گندی اٹھتی ہے۔ محمود غزنوی کا دور ہے، دیکھ حضور کے غلام کیسے ہوتے ہیں، تو نے بھی غلامی کے نعرے لگائے لیکن دیکھ حضور کے غلام کیسے ہیں۔ محمود غزنوی کا دور ہے، ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے محمود غزنوی میں بیوہ خاتون ہوں، میں بیوہ خاتون ہوں، تیرا بھتیجا ہے آدھی رات کو میرے گھر آتا ہے، میری بیٹی کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، میں نے بڑی مشکل سے لوگوں کے برتن دھو کر اب جو ہے بیٹی کی عزت محفوظ کی ہے، اے محمود غزنوی تیرا بیٹا میری بیٹی کی
की इज्जत लूटना चाहता है। महमूद गजनवी कहते हैं खतून चली जा, अब आया मेरा भतीजा तो तूने मुझे पैगाम भेजना है। महमूद गजनवी अपने दरबार के अंदर बैठे हैं, एक वक्त आता है, फिर वो औरत आती है और आकर कहती है महमूद गजनवी तेरा भतीजा आ चुका है, वो मेरी बेटी की इज्जत लूटना चाहता है। दिल थाम के सुनिएगा, महमूद गजनवी तलवार लेते हैं, जल्दी जल्दी उस घर की तरफ चलते हैं और उस खतून से कहते हैं जब मैं तेरे घर में आऊं ना चिराग को बुझा देना, चिराग को बुझा देना। जब महमूद गजनवी उसके घर की दलीस के अंदर जाने लगते हैं, वो चिराग को बुझा देती है। महमूद गजनवी तलवार निकालते हैं, उसका सर तन से जुदा कर देते हैं। उस खतून से कहते हैं ए खतून चिराग जला दे। जब चिराग जलता है जो है महमूद गजनवी जब देखते हैं आसमान की तरफ फिर नजर उठा लेते हैं और कहते हैं या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर खतून से कहते हैं पानी मिलेगा। खतून ने कटोरा भर के पानी का दिया, महमूद गजनवी पीते हैं। फिर कहते हैं पानी मिलेगा, फिर पानी पिया, फिर कहा फिर पानी मिलेगा। उस खतून ने तीसरी मरतबा पानी दिया। महमूद गजनवी अल्लाह का शुक्र अदा करके निकलने लगते हैं। वो खतून कहते हैं महमूद गजनवी रुक जाना, मुझे कुछ सवालात के जवाब देना। महमूद गजनवी कहते हैं क्या सवाल है? कहा पहला सवाल मेरा ये है कि जब आप मेरे घर में आए तो मुझे कहा चिराग बुझा देना, इसकी वजह क्या है? महमूद गजनवी कहते हैं जब मैं तेरे घर में आया तो तुझे कहा चिराग बुझा दे, इसकी वजह ये थी मेरे दिल में ख्याल था अगर मेरा भतीजा हुआ कि मैं तलवार चलाने लगा, कहीं खून कशिश करे, कहीं जो तलवार रुक ना जाए, मैंने तो इंसाफ करना है, चाहे भतीजा हो चाहे बेटा हो, मैं तो हुजूर का गुलाम हूं, मैंने इंसाफ करना है, इसलिए कहा था चिराग बुझा देना। कहा महमूद गजनवी दूसरा सवाल बताइए कि आपने पानी किस तरह पिया है जिस तरह काफी दिन के प्यासे है। महमूद गजनवी कहते हैं एक सवाल का जवाब दे दिया, रहने दे। खतून इसरार करती है। महमूद गजनवी कहते हैं खतून तू जब से कह के आई है ना मैंने खाया है ना मैंने पिया है, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं कहता हूं मेरे होते हुए एक बेवा खतून की बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, मैं हुजूर का गुलाम कैसा हूं? मेरे होते हुए एक बेवा खतून की बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। मैंने अज़म कर लिया जब तक मैं उस शख्स को, उस नौजवान को, चाहे वो मेरा भतीजा है चाहे मेरा बेटा है, जब तक काफिर के दांत तक न पहुंचा लूं, ना मैंने खाना है ना मैंने पीना है ना मैंने सोना है। कहा खतून मैं उस वक्त का सोया नहीं हूं, मैंने अब इसको फासले इसकी गर्दन उतार दी है। ऐ खतून अब पानी पीना तो मेरा हक बनता है ना, अब पानी पीना तो हक बनता है। मेरे भाई जो हुजूर के गुलाम थे वो बहनों की सर पे शफकत का हाथ रख